Good afternoon, students. As we are dealing with the economics subject, we are going to see the part 1 book, Statistics for Economics. So, you are able to see the image which I have presented here. I have shared the image here. It is what? Statistics for Economics. So, in this Statistics for Economics, what all things we are going to discuss here, we'll see. Okay. So, in the first chapter of the introduction, what things are there? The points to be discussed. First, you are going to see what is economics. Economics मतलब क्या है आप यहाँ पर देखोगे. उसके बाद क्या है statistics in economics. मतलब statistics actually required है क्या economics में, वो आप यहाँ पर जानोगे. उसके बाद क्या होगा, what statistics does, मतलब statistics क्या है पहले देखोगे, what is statistics देखोगे. मतलब स्टैटिस्टिक्स का मतलब आपको उसके मीनिंग डेफिनेशन पार्ट देखोगे, उसके टाइप्स देखोगे. उसी के साथ वो स्टैटिस्टिक्स क्या काम करता है एक्चुअल फैक्ट. हम लोग इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स को ऐड अप कर रहे हैं, तो वो किस वजह से ऐड अप कर रहे हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इट, व्हाई वी आर यूजिंग statistics in economics, and what statistics does in economics, that we are going to check it out here. Then lastly we will be concluding it. Then next, introduction. The first part, what is economics. See, economics हम लोग जो पर्सनली देखते हैं हमारी डे टू डे लाइफ में, हम लोग उसे एग्जामिन करते हैं या फिर प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन वो हम लोग नोटिस नहीं कर पाते. ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं. सी, many of the things are there where we will be having in our day to day life, but we never notice that. You will be having many of the examples in preceding further classes. So at present, let's see what is economics. Now, what is this economics? See, economics is the study. What it is? It is a study of how people allocate scarce resources for production, distribution, and consumption. See, most probably what we are going to do, we are going to see it is a study of what people do, how they allocate resources. Resources मतलब जो naturally हमें provide होते हैं, ठीक है, natural resources बोलते हैं उसे. तो यहाँ पर क्या होता है, उसे properly allocate करना बहुत ज़रूरी है. What we have to do is we have to allocate in a proper way so that we should not destroy the resources. मतलब जो मिल रहा है हमें वो destroy नहीं होने चाहिए, उसे ना हम लोग बड़े बड़े अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए. यूटिलाइज बोलते हैं हम लोग, मतलब जो हमें चाहिए जैसे अच्छी तरीके से आप उसे यूज करो, उसे बोलते हैं रिसोर्सेज. तो यहाँ पर पहला वर्ड आता है प्रोडक्शन. अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हो तो क्या प्रोडक्शन करने वाले. द फर्स्ट वर्ड कम्स हियर, प्रोडक्शन. प्रोडक्शन मीन्स व्हाट, योर फर्स्ट थिंग एज अ बिजनेस पर्सन, व्हाट यू विल प्रोड्यूसिंग द गुड्स. क्यों, मतलब यहाँ पर क्या प्रोडक्शन करना है, पहला बड़ा क्वेश्चन है, व्हाट टू प्रोड्यूस. ये अपने इकोनॉमिक में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी भी बुला सकते हैं हम लोग. व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब जब आप लोगों को चाहिए वो प्रोडक्शन कर रहे हो या फिर आपको चाहिए वो प्रोडक्शन कर रहे हो. अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो उसे सेल भी then what the people require, that you will be producing the goods. So nextly, distribution. Distribution is what, distribution is very much important concept here. Why? Because distribution of wealth we can say. See, every field has not a equal distribution. अगर आप देखोगे हमारे पॉवर्टी में देखो या फिर गरीबी में देखोगे तो ज़्यादातर रिच पीपल्स रिच होते जा रहे हैं, मिडिल क्लास वहीं पर है, पुअर जो है और पुअर होते जा रहे हैं. तो यहाँ पर इक्वालिटी नहीं है. जो कुछ डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं हम लोग, डिस्ट्रीब्यूट इक्वली होना चाहिए, जिसे जितना रिक्वायर्ड है उतना डिस्ट्रीब्यूट करते रहो, ठीक है. ये सभी आता है यहाँ. सी व्हाट द डिस्ट्रीब्यूशन एग्जैक्टली मीन्स, every, I will take the example of our economy only. Now a few of the sections or sectors are there where they are at a top, means they are producing more and they are at a top, but few of them are what, they are struggling still, and few of them are at one level, so that there are no profits, no losses for them. At one level they are standing. Then if we compare the three sectors,
what the upon standing sector has to do, they have to share the resources or else try to bring up the other sectors upward. What the thing is, अगर आपका दूसरा सेक्टर प्रॉफिट कर रहा है तो उस प्रॉफिट अर्निंग सेक्टर को क्या करना चाहिए, जो बैकवर्ड सेक्टर है वहां से उनको हेल्प करके उनको ऊपर लाना चाहिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ठीक है. दैट इज व्हाट द थिंग्स आर देयर हियर. देन कंजम्पशन, द थिंग्स, कंजम्पशन का मतलब क्या है, ये फिर से हम आप आगे चल के डिस्कशन करेंगे. वी विल बी डिस्कसिंग द सेम कॉन्सेप्ट फर्दर अगेन. वी आर हैविंग द थ्री वर्ड्स. So consumption is nothing but the uses of the goods. So you are the final consumer. You will be using the goods. That is what the consumption of your both individual as well as collectively. Individual मतलब आप खुद के बारे में, या फिर collectively मतलब आपकी फैमिली के बारे में यहाँ पर देखोगे. अभी ये हो गया अपना एक डेफिनेशन. डेफिनेशन मतलब इकोनॉमिक्स क्या है आप लोगों ने जनरली जाना, लेकिन इकोनॉमिक वर्ड कहाँ से आ गया, कहाँ से मिला ये आप हमें इकोनॉमिक वर्ड. तो यहाँ पर आप जानोगे इकोनॉमिक्स मीनिंग. इकोनॉमिक्स, ये इकोनॉमिक्स का मीनिंग भी जो है ना, ये एक ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है. ग्रीक वर्ड का मतलब क्या होता है, यहाँ पर ये वर्ड OIKONOMIA, ओकोनोमिया, ये जो वर्ड है ओकोमोनिया, this is the word which has been derived from a Greek word. What it means? It means household management. आपको और एक बात बताता हूं, ये जो वर्ड है हाउसहोल्ड मैनेजमेंट, ये जो वर्ड हम लोग देख रहे हैं, ये हर बार अलग अलग तरीके से अलग इकोनॉमिस्ट ने इसे प्रेजेंट किया है, ठीक है. ये जो वर्ड्स है ये टू ग्रीक वर्ड्स भी बोलते थे हम लोग. टू ग्रीक वर्ड्स में हम लोग देखते थे कि वो ओइकस मतलब वो हाउस होल्ड हो गया, और नॉमस का मतलब मैनेजमेंट हो गया. ये दो तरीके से भी देखा हम लोगों ने, और यहाँ पर सीधा एक ही वर्ड में हाउस होल्ड मैनेजमेंट भी मिल गया. सो ये ग्रीक वर्ड है, इसका मीनिंग बता रहा हूँ. जो इकोनॉमिक्स वर्ड हम लोग डील कर रहे हैं उसका मीनिंग है, दिस वर्ड इज बीन डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, that is what oikonomia, which means household management. This is all about the meaning part, ठीक है. ये हो गया अपना मीनिंग. अभी आगे चल के इनके डेफिनेशंस देखेंगे. पहला डेफिनेशन दिया गया है एडम स्मिथ. जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये एडम स्मिथ है. इसे एडम स्मिथ को हम लोग फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं. क्यों बोलते हैं, इसका भी एक रीजन है. सी, एडम स्मिथ इज रिगार्डेड एज अ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स. इन द ईयर 1776 एडम स्मिथ रोट अ बुक. उन्होंने एक बुक लिखा. कब? 1776. जब उनको फादर बोल रहे हैं तो स्टार्टअप भी जो उन्होंने किया होगा, फाउंडर. तो यहाँ से इन द ईयर 1776 एडम स्मिथ रोट अ बुक, एन इंक्वायरी नोट इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस. इस बुक में उन्होंने खुद इकोनॉमी के बारे में बात की है. और आप देख रहे हो ये जो इकोनॉमिस्ट है, कैसे हमारे तो नहीं है इंडियन लोग, मैक्सिममली ये जो फॉरेनर्स है जैसे कि ब्रिटिशर्स में से इंग्लैंड, ब्रिटेन, ये उस साइड से है, जो कि हर एक एक्सपेरिमेंट करते हैं. एक्सपेरिमेंट में अलग कुछ तो दिख रहा है, तो ये हो गया इकोनॉमिक. ये सभी इकोनॉमिक्स रिसर्च में लगे रहते हैं, आपको कुछ अलग मिल जाए. ये ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आएंगे जो आपको आगे चल के मिलेंगे, तो उस पर हम लोग डिस्कशन करते रहेंगे. तो यहाँ पर क्या है, लेट्स गो फॉर द एडम स्मिथ डेफिनेशन. नाउ ही इज द स्कॉटिश फिलोसोफर वाइडली कंसिडर. क्या है ये? स्कॉटिश फिलोसोफर है, वाइडली कंसिडर एज अ फर्स्ट मॉडर्न इकोनॉमिस्ट. फर्स्ट मॉडर्न इकोनॉमिस्ट मतलब जिन्होंने, हम लोग इनको ऐसे ही नहीं बोलते फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, जैसे हम लोग महात्मा गांधी जी को बोलते हैं बापू, तो ऐसे ही ये अपने इकोनॉमिक सब्जेक्ट के रिलेटेड है. व्हाट इट इज इन द इकोनॉमिक्स, ही इज द regarded as a father of economics. Then what he says in his definition, see, economics is a science of wealth. अभी ये science of wealth जो बोलते हैं
इकोनॉमिक्स के डेफिनेशंस बहुत सारे इनबिल्ट, सिर्फ एक लाइंस में बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस रखते हैं और प्रेजेंट किए रहते हैं। ये हम एक आगे चल के एक एक कॉन्सेप्ट हम लोग डिटेल में पढ़ाई करेंगे। व्हाट इज सेज इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ। साइंस वर्ड क्यों यूज किया और ये इकोनॉमिक्स वेल्थ क्यों देख रहा है? वेल्थ मीन्स व्हाट, हाउ द पीपल आर स्टेइंग हियर, मतलब ये सभी लोग जो है कैसे रहते हैं, जो पुअर क्लास, रिच क्लास और मीडियम क्लास के जो लोग हैं उनके वेल्थ के बारे में ये बात करता है, जो कि हर लोगों को, एवरीवन इज नॉट गोइंग टू गेट अ गुड फूड, क्लोथ, शेल्टर, ये सभी प्रॉब्लम्स होते हैं यहाँ पर। दीज आर द टू मेनी प्रॉब्लम्स वेयर ही इज गोइंग टू सी ऑन द बेसिस ऑफ वेल्थ, हाउ द पीपल्स वेल्थ इज देयर, on that basis he has defined the economics. Then further let's go for the another definition. Now अगर आप देख पा रहे हो, ये जो है अल्फ्रेड मार्शल है, अल्फ्रेड मार्शल, ये आगे चल के मतलब जितने मेन हम लोगों को डेफिनेशंस देके गए हैं, ये जो इकोनॉमिस्ट है इनका अलग अलग रोल है। अलग अलग रोल मतलब क्या, इन्होंने कुछ ना कुछ जो ओल्ड थे उसमें कुछ ऐड अप करके नया बनाया। ठीक है, व्हाट इज द ओल्ड थिंग, व्हाट द दिस वन आवर एडम स्मिथ सेड, ही फोकस्ड ऑन द वेल्थ ऑफ अ नेशन। ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या किया, वेलफेयर डेफिनेशन दिया, मतलब ये अपने डेवलपमेंट वेलफेयर के बारे में सोचा। वेलफेयर वर्ड क्यों हम लोग नोटिस कर रहे हैं यहाँ पर, हमारे इकोनॉमी में सडनली कुछ भी हो सकता है, जैसे कि एक वॉर का इंसिडेंट आ गया, उस वक्त वॉर के बारे में अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो कम से कम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर लड़ाई अगर हो रही है, वॉर अगर हो रहा है, इफ़ यू आर फेसिंग अ प्रॉब्लम, वी आर हैविंग अ वॉर विथ अदर कंट्री लाइक पाकिस्तान, इंडिया, वॉर इज गोइंग ऑन, दैट टाइम ऑल द इकोनॉमिक transactions will be stopped totally. Only the focus will be on the this one war, and even many of the landslidings are there, whatever the floods are there, वहाँ पर क्या है, सिर्फ हम लोग वेल्थ के बारे में ना सोच के अपने सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में भी सोचे। इस हिसाब से अल्फ्रेड मार्शल ने अपना खुद का डेफिनेशन दिया है। दिस पर्सन, सी ही वाज बोर्न इन ऑन जुलाई 26 1842 in London and died in July 13 1924। then it is a कैम्ब्रिज से थे। उसके बाद ही इज अ चीफ फाउंडर ऑफ स्कूल ऑफ नियो क्लासिकल इकोनॉमिक। आपको ये जो वर्ड्स बता रहा हूँ मैं, जैसे कि मॉडर्न इकोनॉमिक्स, नियो क्लासिकल मॉडल्स, ये इकोनॉमिक्स में जो पार्ट है, हर एक ने कुछ ना कुछ इन्वेंशन किया है। ये जैसे ये हम लोग साइंटिस्ट बोलते हैं, हाउ वी लुक आफ्टर द साइंटिस्ट, some or the other things what they are adding and making them a modern thing and coming here with us, that is what we are seeing here. So most probably he is a classical economist, then he neoclassical economics and the first principle of university college british rule. Then what he says, we'll see with the definition, what he is saying in his definition. He is one of the founder of modern economics. See, he is the founder of modern economics. Previously, the Adam Smith was there. When he came into existence, he became the founder. He found a modern economics. इन्होंने क्या किया है, मॉडर्न इकोनॉमिक्स यहाँ पर फाउंड किया है। तो इनका मतलब क्या है, देखिए, द स्टडी ऑफ मैन इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, मतलब इन्होंने वेलफेयर के बारे में डिफाइन करते हुए इन्होंने बोला कि इट इज अ स्टडी ऑफ मैन इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। अभी ये ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ का मतलब क्या होता है, आप यहाँ पर आते हो, आप पहले तो कंजम्पशन करोगे, प्रोडक्शन करोगे, डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, ये कॉन्सेप्ट हम लोग फिर आगे के स्लाइड्स में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फिर भी मुझे अभी सिर्फ हाईलाइट कर पा रहा हूं मैं कि मैं करूंगा यहाँ पर हाईलाइट द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ मतलब आप जो रह रहे हो वो सभी एक बिजनेस की तरह है। कैसे, आपको कंजम्पशन करना है, कंजम्पशन कहाँ पर करोगे आप, गुड्स परचेस करोगे, गुड्स परचेस कहाँ से करोगे, सेलर से करोगे, सेलर गुड्स कहाँ से लाएगा, एक तो एग्रीकल्चरल या फिर मैन्युफैक्चरर से। मैन्युफैक्चरर का मतलब क्या है, वो गुड्स प्रोड्यूस करता है, वो सेल करता है, ये सभी ये बिजनेस की तरह देखा जाता है। व्हाट ही सेज, इट इज वन ऑफ द बिजनेस ऑफ लाइफ।
वी आर डूइंग अ बिजनेस इन आवर लाइफ। अगर आपको कुछ खाना पीना है तो आप क्या करोगे? सेलर के पास जाओगे, मैं ठीक है, सेलर वो गुड्स आपको देगा, आप कंज्यूम करोगे। लेकिन वो सेलर गुड्स कहाँ से लाएगा? फ्रॉम वेयर ही इज गोइंग टू ब्रिंग? द मैन्युफैक्चरर और द एग्रीकल्चरर। देन दिस इज व्हाट द सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज बोलते हैं। गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स अलग है, होल्डर अलग है, जो कि होल्ड करते हैं वो अलग है। ये सभी कॉन्सेप्ट्स हम लोग फर्दर स्लाइड्स में हम लोग जानेंगे इन डिटेल में, ठीक है। सो नेक्स्ट सी, दिस इज वन ऑफ द लियोनिल रॉबिन, वन ऑफ द इकोनॉमिस्ट डिफाइन। ये कैसे डिफाइन कर रहा है? इन्होंने क्या किया है पता है? जो वेल्थ और वेलफेयर का डिसीजन जो है, इन्होंने उसे मर्ज अप किया है। जो दो डेफिनेशंस देखे हैं हम लोगों ने, वो इन्होंने मर्ज अप करके नया डेफिनेशन बनाया। व्हाट ही हैज डन, ही हैज डिफाइंड इट एंड सो ही हैज डिफाइंड इट कंबाइंडली। मतलब क्या बोला है देखिए, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर। ये इकोनॉमिक्स एक साइंस है जो कि ह्यूमन बिहेवियर देखता है। और यहाँ पर हम लोगों ने पहले डेफिनेशन में क्या देखा? वेल्थ के बारे में। तो ये अपना वेल्थ के बारे में बताएगा, जैसे कि साइंस वर्ड यूज किया। तो ये दो डेफिनेशंस थे, वेल्थ और इसके अपने वेलफेयर के, इन्होंने कंबाइन करके खुद का एक डेफिनेशन बनाया है। क्योंकि वेल्थ भी रिक्वायर्ड है, वेलफेयर भी रिक्वायर्ड है। तो कैसे होता है ये हम लोग जानेंगे। सी, लियोनिल रॉबिन हैज डिफाइंड economics as follows. Economics is a science which studies human behavior. क्या करता है? स्टडी करता है। क्या स्टडी करता है? ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करता है। रिलेशन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड एंड स्केर्स। रिलेशन बिटवीन एंड और स्केयर के बारे में, रिलेशन क्यों पढ़ रहा है, ये क्यों स्टडी कर रहा है, वो जानेंगे। सी, एंड स्केयर मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस, जो कि हमें अल्टरनेटिव यूजेस दिलाता है। एंड का मतलब क्या है? अगर आपको कुछ एक चाहिए हो, एक गुड्स चाहिए, अगर वो आपको नहीं मिल रहा, मतलब क्या, उसके बारे में सोचने से क्या है, वो कम है, तो आप अल्टरनेटिव जाओगे कि नहीं जाओगे? मतलब आप इवनिंग पे आप चाय पीना चाहते हो, चाय पत्ती नहीं है, मीन्स व्हाट, एट इवनिंग यू वुड लाइक टू हैव अ टी। That time you are not having tea powder. Now for that reason what you are going to do, you will go for a coffee. अगर coffee powder है, means if you are having coffee powder and milk and sugar, that is the alternative. You are going for a alternative use. Okay, so what he says here, economics is a science which studies human behavior as a relation between ends and scarce, which means alternative uses. यहाँ पर scarce resources हो तो एक छोड़ के दूसरे के ऊपर आप अल्टरनेटिव यूज करते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। तो वो सभी एडजस्टमेंट हो सकता है और एडजस्टमेंट्स करते हैं हम लोग, ठीक है। दैट इज व्हाट वन ऑफ द definition here. Then let's go for the another one. Now this is one of the economists. He has given his in modern definition. He has defined modern definition of economics at present. This definition is preferable. Means एक के बाद एक जो इकोनॉमिस्ट कुछ ना कुछ नया लाते हैं और नया डेफिनेशन बनाते हैं, वन आफ्टर द अनदर, what they are going to bring a new concept and they are going to present it in a new format. So what he says, see, this is Samuelson. Now in today's life we are noticing these definitions, we are noticing this as a modern definition of economics. Okay, then in this what he says, economics is a social science. Obviously economics is a social science concerned chiefly with the वे सोसाइटी चूजेस टू एम्प्लॉय इट रिसोर्सेज। मतलब क्या है, जो कि हम लोग सोशल साइंस बोल रहे हैं, जो सोसाइटी चूज करेगा एम्प्लॉय कैसे करना है, एम्प्लॉय कैसे करना है, मतलब जो रिसोर्सेज अवेलेबल है कैसे यूटिलाइज करना है, वो आप खुद ही करोगे, ठीक है। देन विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। ऑब्वियसली जो कुछ आप रिसोर्सेज हम लोग बात कर रहे हैं, हर रिसोर्सेज को एक अल्टरनेटिव है। वी आर हैविंग अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ द रिसोर्सेज। ओनली वन goods can be used for many other things, that is what the alternative uses. Then to produce goods and services, मतलब goods and services produce करने के लिए बहुत सारे अल्टरनेटिव यूजेस है, ठीक है। देन
फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर कंजम्पशन। अगर आप अभी के लिए एट प्रेजेंट what you are making here is you are looking after alternative uses to of to produce goods। आप अल्टरनेटिव यूजेस देख रहे हैं प्रोड्यूस गुड्स। अगर आपको कुछ मिल्क स्टोर वगैरह करना है, सडनली क्या होता है, आपको जो फैक्ट्रीज को मिल्क बेचते हैं वो अगर फ्रिज में आप रखते हो तो कम से कम 1 वीक चल जाता है। ठीक है, यू कैन स्टोर इट फॉर 1 वीक और 10 to 15 डेज। ठीक है, उसमें केमिकल्स केमिकल्स बोल सकते हैं या फिर अल्टरनेटिव एक्सटर्नल पाउडर यूज किया जाता है जो उसे स्टेबल रखता है कि कम से कम इतने दिन रहे। ठीक है, ये कैसे हो सकता है, उसे कुछ यूज करना पड़ेगा। क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग, अल्टरनेटिव टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, वहां पर टेक्निक यूज कर रहे हैं। तो ये कैसे हो सकता है, तो यहाँ पर इन फ्यूचर हमें गुड्स यूज करें टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर। आज अगर आप लेके आ रहे हो तो आज के लिए हो गया, कल के लिए चाहिए हो तो घर लेके आने के बाद आप फ्रिज में रखोगे या फिर उसे उबाल के रखोगे। ये क्या है, अल्टरनेटिव यूजेस है, जो कि रिसोर्सेस हम लोग अल्टरनेटिवली यूज कर रहे हैं, जो कि हमें आज और कल यूज होके हम उसे यूटिलाइज करें। अभी चलते हैं टेक्स्ट बुक के लिए। टेक्स्ट बुक में जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट देखे हैं, यहाँ पर अल्फ्रेड मार्शल का डेफिनेशन हम लोग जानेंगे। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट अल्फ्रेड मार्शल हैज डिफाइंड इन डिटेल। इन डिटेल हम लोग उनके डेफिनेशन को देख पाएंगे। सी व्हाट ही मीन्स, यहाँ पर जैसे कि बोला मैंने कंजम्पशन। कंजम्पशन कौन करता है, हु डज दिस कंजम्पशन, कंजम्पशन डज इज डन बाय द कंज्यूमर। लेट्स सी, व्हेन यू बाय गुड्स, अगर आप बाय कर रहे हो गुड्स, आप परचेस कर रहे हो, you may want to satisfy your own personal needs or those of your family or those any other person or to whom you want to make a gift. For what purpose you are purchasing the goods, for the consumption. Consumption, what is the consumption word here means, see, it is what you want to have a satisfaction by consuming the goods. It may be you person, it may be your family, your friend circle, or if you are gifting them or to your friend, they should get a satisfaction. That is what the, when you buy the goods, then for the what, your satisfaction level for your family or your friends or to whom you want to gift, अगर आप किसी को गिफ्ट देना चाहते हो, what you call that is what, a consumer. Who is that, when you are buying the goods for yourself means you are a consumer, or your family means you are a consumer, you and your family. You may be the individual as well as your collectively you are the family. First point. Then secondly, the consumer, from where he gets the goods, from the seller. Next point what we are seeing here, when you sell the goods to make a profit for yourself means, अगर आप सेलर हो, मतलब आप आपके प्रॉफिट के लिए गुड्स सेल कर रहे हो तो आप सेलर कहलाओगे। यू मे बी अ शॉपकीपर, आप शॉपकीपर हो और आपको कहाँ से गुड्स मिलते हैं, शॉपकीपर। व्हेन ही sells the goods, he will be having a motto that to have the profits. That profits are none other than got from the seller. That is you are going to get from the seller here. Then next, अगर आप सेल कर रहे हो तो गुड्स कहाँ से लाओगे, मोस्ट प्रोबेबली एक तो एग्रीकल्चर से लाओगे या फिर मैन्युफैक्चरर से। मैन्युफैक्चरर को हम लोग प्रोड्यूसर भी बोलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट कहाँ पर आ गया, व्हेन यू प्रोड्यूस गुड्स, अगर आप गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो तो आप कहलाओगे प्रोड्यूसर। when you are producing the goods you will be the producer. Here we can see that you may be a farmer or manufacturer. आप farmer भी हो सकते हो, जो कि फूड ग्रेन्स देने वाले फार्मर्स ही होते हैं। दैट इज व्हाट, यू कैन बी अ फार्मर एज वेल एज द मैन्युफैक्चरर कंपनी। प्रोवाइड सर्विसेज में भी डॉक्टर। ये गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में बात करें तो गुड्स अगर बात करेंगे तो क्या वो होगा, एक तो फार्मर या फिर मैन्युफैक्चरर। अगर आप सर्विसेज के बारे में बात कर रहे हो तो क्या होगा यहाँ पर, सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर कौन होता है, डॉक्टर, लॉयर, टैक्सी ड्राइवर, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, ए ड्राइवर, ये सभी होते हैं। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं इसे, प्रोड्यूसर। नेक्स्ट आता है कॉन्सेप्ट एम्प्लॉय और या फिर
एम्प्लॉयर या फिर एम्प्लॉयर दो अलग है, और यहाँ पर इनको अल्टरनेटिव नाम भी है सर्विस होल्डर। आप अगर सर्विसेज दे रहे हो या फिर आप किसी जगह पर जॉब कर रहे हो, आप सर्विस होल्डर कहलाओगे। और जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए बता रहा है उसे कहलाते हो एम्प्लॉयर। He is none other than the service provider, the owner. Okay, that two words are there here. Let's go for a one word. See, when you are in a job working for some another person and you get paid for it, you may be employed for somebody who pays you wages or salary. You are employee, मतलब आपकी सैलरी या फिर वेजेस के लिए दूसरों के यहाँ पर काम कर रहे हो, तो आप एम्प्लॉय कहलाते हो। इवन एम्प्लॉय को हम लोग सर्विस होल्डर बोलते हैं। सर्विस आप दे रहे हो तो सर्विस होल्डर है, ठीक है। ये हो गया सर्विस होल्डर और एम्प्लॉय। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉय। व्हेन यू एम्प्लॉय समबडी गिविंग देम वेजेस, अगर आप किसी को काम पे रख रहे हो तो उसे क्या कहलाते हो आप? एम्प्लॉय बोलते हो। लेकिन आप खुद को एम्प्लॉयर कहला सकते हो, मतलब अगर आप सर्विस किसी को प्रोवाइड कर रहे हो तो आप हो गए एम्प्लॉयर, यू आर द ओनर, यू आर सर्विस प्रोवाइडर यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया। फिर लास्टली हम लोग देखेंगे इन ऑल दिस केसेस यू विल बी एबल्ड मीन्स कॉल्ड गेनफुली एम्प्लॉयड इन द इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज। और यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज एक वर्ड नया आ रहा है, देखेंगे क्या है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर वन दैट आर अंडरटेकन फॉर अ मॉनिटरी गेन। मॉनिटरी गेन के लिए हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज कंसिडर कर रहे हैं। सो दिस इज व्हाट इकोनॉमिस्ट मीन्स द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। सी यहाँ पर फिर से व्हाट इकोनॉमिक्स मीन्स इट इज अ ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। कैसे है देखेंगे। ये हो गया यहाँ पर इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज, सॉरी एक्टिविटीज, जो वर्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज आया था एक्टिविटीज के अंडर कंसिडर होता है। एक्टिविटीज में क्या होता है? प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अभी जो हम लोगों ने जो डिस्कशन किया पॉइंट्स, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज या फिर कंजम्पशन, ये सभी जो पॉइंट्स है ये आ गए इकोनॉमिक एक्टिविटीज। एक्टिविटीज फुल कॉन्सेप्ट है, हम लोग सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटीज देख रहे हैं। फिर भी हम लोग यहाँ पर एक्टिविटीज में दो तरह के से होते हैं, इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक। जो कि मॉनिटरी टर्म्स में मेजर किए जाते हैं वो इकोनॉमिक्स है। मॉनिटरी टर्म्स में जो मेजर करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज होते हैं, जैसे कि पैसे से हम लोग उनसे तोल सकते हैं। वी कैन मेजर दिस एक्टिविटीज इन मनी, that is none other than production, distribution, investment, then exchange. This is measured in terms of money, so it is called as economic activities. But when it comes to the other side, non economic activities जैसे कि social work या फिर religious, politician, charitable, ये हम लोग पैसों में तोलते नहीं हैं। We are not going to measure them in the society. Just it is not other than the services which are provided by the people फॉर नॉट प्रॉफिट मोटिव। यहाँ पर प्रॉफिट मोटिव नहीं होता, सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इतना क्लास बस है।